Dear students, once again welcome back to online teaching. So as you know, before this lecture we have discussed so many things about the cell, but now students, now we will discuss about some ऑर्गेनेल्स. ओके, जैसे कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, हम यहाँ पे बात करेंगे कुछ ऑर्गेनेल्स के बारे में. So now the next part that we are going to discuss is nucleus. So students, first of all you should know what is nucleus. See, always you should know nucleus is present in the center of the cell. That you should know that nucleus is present in the center of the cell, and the nucleus is surrounded by a double layer membrane. Remember one thing, nucleus is surrounded by a double layer membrane called nuclear membrane. Clear? Now we will study one by one. See, nucleus, okay, it is an important component of the living cell. It is generally spherical and located in the center of the cell. It can be seen and seen easily with the help of a microscope. See, now the question is, okay, nucleus is an important component of the living cell. Remember one thing, okay, nucleus is the important component of the living cell, and it is spherical, generally spherical. Okay, means if we are talking about the shape, it is generally spherical and located in the center of the cell. So student, ये कहाँ पे located है? Remember one thing, nucleus is always present in the center of the cell. What do you mean by center? In the middle of the cell. Okay, and that nucleus can be easily seen. Okay, nucleus को हम easily देख सकते हैं. कैसे? With the help of microscope. Clear? So nucleus is separated from the cytoplasm. Remember one thing, मैंने अभी आपको बताया था. Okay, nucleus is having a double layer membrane. Nucleus is having a double layer membrane called nuclear membrane, and that nuclear membrane separate the nucleus from the cytoplasm. Clear? That nuclear membrane separate the nucleus from the cytoplasm. क्योंकि स्टूडेंट्स हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि जो सेल होता है, सेल के सेंटर में न्यूक्लियस होता है, देन जो आउटर पार्ट है वहाँ पे ओके प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, और जो सेंटर जो बीच में होता है ओके वो क्या था? साइटोप्लाज्म. सो साइटोप्लाज्म इज सेपरेटेड बाय ओके nucleus is separated from the cytoplasm by a membrane called nuclear membrane. This membrane is also porous and allow the movement of the material between the cytoplasm and the inside of the nucleus. अब स्टूडेंट वन मोर थिंग, अगर हम यहाँ पे न्यूक्लियस ओके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करें तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज porous. Porous means that membrane is having some small holes. Okay, or that holes will allow the movement of the material from cytoplasm and inside of the nucleus. So student, ये जो membrane है ये कैसी? ये porous मतलब क्या है? सॉफ्ट, जिसकी हेल्प से कोई भी मटेरियल अगर न्यूक्लियस से बाहर आना चाहता है तो उसकी हेल्प से आ सकता है, और अगर साइटोप्लाज्म से अंदर जाना चाहता है तो भी वो जा सकता है. क्लियर? With a microscope, a higher magnification, we can see a small spherical body in the nucleus. It is the nucleolus. अब सी स्टूडेंट, अगर हम न्यूक्लियस को बहुत ध्यान से देखेंगे, विद अ हायर मैग्निफिकेशन, ओके मीन्स जो माइक्रोस्कोप होना चाहिए वो हाईली डेवलप्ड होना चाहिए, मीन्स बहुत ही हाई क्वालिटी का होना चाहिए. सो जब हम न्यूक्लियस को बहुत ध्यान से देखेंगे तो वहाँ पे आपको एक छोटा सा स्पेरिकल शेप में कुछ दिखाई देगा. कहाँ पे? न्यूक्लियस के अंदर. ओके, और जो न्यूक्लियस के अंदर जो प्रेजेंट है दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोलस. रिमेंबर वन थिंग, अब न्यूक्लियोलस ये कहाँ प्रेजेंट है? तो ये प्रेजेंट है न्यूक्लियस के अंदर. इन एडिशन न्यूक्लियस कंटेन अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमोसोम्स. रिमेंबर वन थिंग, वन मोर, इन न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट है? न्यूक्लियस कंटेन, न्यूक्लियस के अंदर कुछ ऐसी एक स्ट्रक्चर है जिसका स्ट्रक्चर टोटली जस्ट लाइक अ थ्रेड तो आपको पता ही है. ओके, तो उसका जो स्ट्रक्चर वो कैसा है? सेम एज इट इज थ्रेड की तरह है.
ओके, एंड दैट थ्रेड इज कॉल्ड क्रोमोसोम्स। क्लियर? और ये जो क्रोमोसोम्स है स्टूडेंट, ये क्या कैरी करता है? दिस कैरी जीन्स। ये क्या कैरी करता है? ये जीन्स को कैरी करता है। अब ये जीन्स को कहाँ कैरी करता है? ओके, फ्रॉम वन पेरेंट टू अनदर। तो आपको ये पता होगा ओके कि जब किसी भी बच्चे का जब बर्थ होता है तो उसके अंदर कुछ चीज़ें जो सिमिलर होती है वो कहाँ से आती है? पेरेंट्स के अंदर से आती है। ओके, मीन्स दिस chromosomes carry genes and genes can be transfer from the parent to the baby or boy. Clear? So student, now up to genes we have completed. This carry genes and help in inheritance or transfer of character from the parent to the offspring. सी स्टूडेंट, ये जो जीन्स है ये क्या कैरी करता है? ये कुछ कैरेक्टर को कैरी करता है। कैरेक्टर को कहाँ से कैरी करता है? जब किसी भी बच्चे का जब बर्थ होता है तो आपने देखा होगा उसका वो जो कुछ बिहेवियर पार्ट होता है। ओके, मतलब बच्चे की जो क्वालिटी है, कुछ क्वालिटी उसके पेरेंट्स के साथ मैच करती है। क्लियर? तो ये जो क्वालिटी जो पेरेंट्स के साथ मैच करती है, ये क्यों मैच करती है? बिकॉज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ बर्थ सम जीन्स हैज़ बीन ट्रैवल्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू baby or offspring. Clear? Now the chromosomes can be seen only when the cell divide. So students, chromosome को हम कब देख सकते हैं? When the cell is divide. जब सेल आपस में डिवाइड होगा तब हम वहाँ पे क्रोमोसोम्स को देख सकते हैं। क्लियर? Now the next part, see, nucleus in addition to its role in inheritance act as control center of the activities of the cell. The entire content of a living cell is known as protoplasm. So students, the entire content of a living cell. Okay, तो student, living cell का जो भी पूरा content है, entire content, okay, the entire content or activity, the entire content of the living cell is called protoplasm. It includes the cytoplasm and the nucleus. Okay, उसके अंदर क्या क्या इंक्लूडेड है? It includes the cytoplasm and the nucleus. Okay, तो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को क्या करता है? इंक्लूड करता है। प्रोटोप्लाज्म इज कॉल्ड द लिविंग सब्सटेंस ऑफ द सेल। सो स्टूडेंट्स, प्रोटोप्लाज्म को हम क्या बोल सकते हैं? प्रोटोप्लाज्म इज कॉल्ड द लिविंग सब्सटेंस ऑफ द सेल। रिमेंबर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक में कहीं पे भी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। ओके, डैश इज कॉल्ड द लिविंग सब्सटेंस ऑफ द सेल, तो आंसर क्या आएगा? प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म इज कॉल्ड द लिविंग सब्सटेंस ऑफ द सेल। सो स्टूडेंट, समझ में आ गया आपको? सो ओके, चलो। सो नाउ द नेक्स्ट पार्ट मैं आपको थोड़ा सा और यहाँ पे डिटेल में बता दूँ। एक जैसे कि अगर हम बात करें स्टूडेंट प्रोकारियोटिक सेल और यूकारियोटिक सेल, ओके, हमारे कंटेंट में इतना डीप में नहीं दिया, बट प्रोकारियोटिक और यूकारियोटिक। सो स्टूडेंट, यू कैन रिमेंबर दिस। प्रोकारियोटिक सेल इज द सेल इन विच न्यूक्लियस इज नॉट प्रेजेंट। प्रोकारियोटिक मीन्स द सेल इन विच न्यूक्लियस इज नॉट प्रेजेंट और it is present in a primary form. क्लियर? प्रोकारियोटिक क्या बोल सकते हैं? प्रोकारियोटिक एक ऐसा सेल होगा जिसके अंदर न्यूक्लियस या तो प्रेजेंट नहीं होगा, या तो अगर प्रेजेंट है तो कौन से फॉर्म में होगा? प्राइमरी फॉर्म में होगा। क्लियर? नाउ नेक्स्ट पार्ट, यूकारियोटिक। ओके, यूकारियोटिक, सो इट इज टोटली ऑपोजिट, द सेल इन विच अ न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। क्लियर? यूकारियोटिक मीन्स the cell in which a nucleus is present, that is called eukaryotic cell. Clear? So चलो, तो ये आपको समझ में आ गया। Now the next part, see, so while observing the onion cell under the microscope, did you notice any blank looking structure in the cytoplasm? सी स्टूडेंट, अब ये क्या बोल रहा है कि जब हमने अंडर द
अंडर द माइक्रोस्कोप व्हेन वी हैव सीन ऑनियन सेल, जब हमने ऑनियन सेल को देखा तो हमने क्या देखा कि उसके अंदर एक ऐसा पार्ट था, ओके, विच इज़ टोटली ब्लैंक, एक ऐसा पार्ट था जो कि टोटली ब्लैंक था, क्लियर। और वो जो ब्लैंक पार्ट था, व्हाट इट इज़ कॉल्ड वैक्यूल, क्लियर। तो सो स्टूडेंट्स, ये जो वैक्यूल है ये कहाँ प्रेजेंट था, तो वैक्यूल वॉज प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म, क्लियर। इट कुड बी अ सिंगल एंड बिग एज इन एन ऑनियन सेल। तो अगर स्टूडेंट हम लोग वैक्यूल की बात करें, व्हाट अबाउट द साइज ऑफ द वैक्यूल, ओके, सो वैक्यूल कैन बी स्मॉल एज वेल एज बिग साइज, क्लियर। सो स्टूडेंट, वैक्यूल का साइज छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है, क्लियर। नाउ chick cell have smaller vacuoles, large vacuoles are common in plant cell. So student, अगर हम large vacuole की बात करें तो large vacuoles are always present in the plant cell. वैक्यूल का जो साइज़ वो क्या होता है, या तो छोटा हो सकता है या तो बड़ा है। तो वैक्यूल का जो साइज़ वो क्या हो सकता है, स्मॉल अदरवाइज बिग। तो स्मॉल वैक्यूल्स आर प्रेजेंट इन एनिमल सेल एंड बिग वैक्यूल्स और लार्ज वैक्यूल्स आर प्रेजेंट इन अ प्लांट सेल, क्लियर। सो ध्यान रखना स्टूडेंट, वैक्यूल का साइज प्लांट सेल में ओके बड़ा होगा और एनिमल सेल में छोटा होगा। नाउ सो you might have noticed several small colored bodies in the cytoplasm of the cell of Tradescendia leaf. They are scattered in the cytoplasm of the leaf cell. These are called plastids. See student, तो जब हम साइटोप्लाज्म को बहुत ध्यान से देखेंगे तो उसके अंदर हमें कुछ छोटे छोटे कलर्ड बॉडीज ओके दिखाई देंगे। जब हम लोग साइटोप्लाज्म को बहुत ध्यान से देखेंगे तो उसके अंदर कुछ कलर बॉडीज हमें वहाँ पे दिखाई देंगे, क्लियर। कहाँ पे, साइटोप्लाज्म में। और ये जो है नॉर्मली ओके जो मैंने आपको बताया कलर बॉडीज़, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, दिस आर कॉल्ड प्लास्टिड्स। हम इसको क्या बोल सकते हैं, दिस आर कॉल्ड प्लास्टिड्स, ओके। दैट प्लास्टिड्स कैन बी ऑफ डिफरेंट कलर्ड। प्लास्टिड्स का जो कलर है स्टूडेंट वो डिफरेंट हो सकता है। प्लास्टिड्स ओके दे आर ऑफ डिफरेंट कलर्ड, सम ऑफ देम कंटेन ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। So student, some plastids can contain green pigment, okay, that green pigment called chlorophyll. Green colored plastids are, okay, अगर हम बात करें green colored plastids की, okay, तो green colored plastids are called chloroplast, clear। Remember students, green colored plastids are called chloroplast, okay, green colored plastids। अगर कोई भी plastids का कलर ग्रीन कलर का होगा देन इट इज़ कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। दे प्रोवाइड ग्रीन कलर टू द लीव्स। और ये जो क्लोरोप्लास्ट इनका काम करता है, ये प्लांट के जो लीव्स है उनको कलर प्रोवाइड करता है। जैसे कि आपने देखा होगा जितने भी प्लांट होते हैं नॉर्मली उसका जो कलर है वो क्या होता है, वो ग्रीन होता है। तो स्टूडेंट्स, जो प्लांट है उनका कलर ओके लीव्स का जो कलर है वो ग्रीन क्यों होता है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट, क्लियर। यू मे रिकॉल दैट क्लोरोफिल in the chloroplast of leaves is essential for photosynthesis। और स्टूडेंट ये आपको पता है कि क्लोरोफिल इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड, ओके, क्लोरोफिल इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। ये तो आपको पता ही है ऑलरेडी, ओके, यू हैव ऑलरेडी लर्न इन द प्रीवियस क्लासेस अबाउट द फोटोसिंथेसिस, क्लियर। नाउ comparison of plant and animal cell. See students, one short diagram is given and one comparison is given about the plant cell and animal cell. See, so first of all let's see, if you recall activity 8.3 and 8.4, you should be able to compare plant and animal cell. Observe the plant and animal cell carefully in the figure number 8.7 A and B. So student, here we will observe the plant cell and animal cell and we will ओके दिस विल क्लैरिफाई अबाउट द डिफरेंसेस एंड व्हाट आर द कॉमन। ओके, दोनों की चीज़ में हम प्लांट और एनिमल सेल में क्या क्या कॉमन है, ओके, पहले वो चीज़ को हम देखेंगे कि दोनों में क्या कॉमन है। तो सी स्टूडेंट, सबसे पहले ओके दिस इज़ द डायग्राम,
सी। तो ये जो 8.7 ओके ए एंड बी, तो ये जो ए वाला डायग्राम इट इज़ फॉर द प्लांट सेल एंड सेकेंड दैट येलो वन इट इज़ फॉर द एनिमल सेल। तो स्टूडेंट यहाँ पे आप देखो तो क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट है। तो सबसे पहले हम देखो सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन मैंने आपको बताया था कि किसी भी सेल का जो आउटर पार्ट होता है ओके दैट इज़ कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। एंड द नेक्स्ट वन वैक्यूल। तो अभी हमने बात की थी ओके इन द प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। तो अभी हमने बात की थी कि प्लांट सेल में वैक्यूल का साइज क्या होगा, बड़ा होगा। सो हियर सी द साइज इज टोटली बिग, क्लियर, सी हाँ दिस इज द साइज। सो दिस इज द साइज ऑफ वैक्यूल एंड हियर ओके दिस दैट वाइट वन। तो यहाँ पे क्या है, दोनों के साइज़ के बीच में काफ़ी डिफरेंस है ओके। नाउ द सेकेंड पार्ट, इसके बाद और क्या कॉमन है इसके अंदर। तो जैसे कि ये येलो पार्ट है ओके, ये जो सेंटर वाला पार्ट ये एंड नेक्स्ट ये क्या है, दिस इज़ द साइटोप्लाज्म। तो ये क्या है, कि साइटोप्लाज्म है, क्लियर। एंड उसके बाद नेक्स्ट वन ये क्या है, दिस इज़ कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट ओके। तो मैंने अभी आपको बताया था कि क्लोरोप्लास्ट क्या होता है। दीज आर द ग्रीन ओके, दैट क्लोरोप्लास्ट आर कॉल्ड द ग्रीन पिगमेंट ओके, एंड दिस ग्रीन पिगमेंट्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन कलर ऑफ द लीफ, क्लियर। एंड द नेक्स्ट वन मोर जो सेंटर में हमने बात की थी, दिस इज़ द सेंटर। तो ये क्या है, दिस इज़ द सेंटर ओके, कहाँ प्रेजेंट है, दोनों सेल के सेंटर में। और ये क्या है, इट इज़ कॉल्ड न्यूक्लियस, क्लियर। सो दिस इज़ द कंपैरिजन ऑफ प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। सो स्टूडेंट यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, सो स्टूडेंट्स सो यहाँ पे दोनों के बीच में कंपैरिजन आपको समझ में आ गया होगा ओके। देखो यहाँ पे क्वेश्चन दिया 8.1 जो टेबल है, जैसे कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में कौन कौन सी चीज़ें प्रेजेंट है। तो सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो प्लांट सेल और एनिमल दोनों में सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, पर अगर सेल वॉल की बात करें तो प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट है, बट एनिमल सेल में ओके सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है। द न्यूक्लियस प्लांट सेल एंड एनिमल सेल ओके, तो यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा दोनों में प्रेजेंट है। फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ओके, तो यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन शो नहीं हो रहा है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि ये प्रेजेंट नहीं है ओके। साइटोप्लाज्म दोनों में अवेलेबल है। देन प्लास्टिड्स सिर्फ प्लांट में प्रेजेंट है, एनिमल में प्रेजेंट नहीं होता है। और वैक्यूल, तो वैक्यूल यहाँ पे दोनों में प्रेजेंट है। सो स्टूडेंट्स आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ये एक सिंपल कंपैरिजन है कि दोनों के बीच में कौन कौन सी चीज़ें कॉमन हैं ओके। सो स्टूडेंट्स नाउ हियर द लेक्चर इज़ कम्प्लीटेड। आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको यहाँ तक की सारी समझ में आ गई होगी। सो यहाँ तक एक बार सारे टॉपिक को आप फिनिश करना, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे इसके आगे जो नेक्स्ट पार्ट है ओके स्टूडेंट्स। सो नाउ जय हिंद स्टूडेंट्स।